निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांती एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश SECM 02 B.Ed स्पेशल एजुकेशन। अगेन we will be talking about topic is same as the previous one, but we will be covering some new instructional aids. They are overhead projector, language laboratories, language games and reading cards. Now, what is the objective of teaching this topic? First thing, students will know the usage of overhead projector, language laboratory, language games and reading cards to support language learning. They will learn the importance of language laboratories, language games and reading cards to support storytelling and language development, and they will learn the benefits of using all these instructional aids, and along with that they will be able to know that how these instructional aids will promote critical thinking, and last will be how to use these instructional aids for effective teaching. So, after watching this video you will be able to understand how these instructional aids, overhead projector, language laboratory, language games, reading cards will support English language learning. Then importance of film strips to support storytelling and language development. Then they will be able to describe the benefits of using overhead projector, language laboratories, language games and reading cards in the classroom teaching, and role of language laboratories in promoting critical thinking, as well as they will be able to evaluate the role of instructional aids in effective teaching. Now, first we will be talking about overhead projector. So, we know that overhead projector is a medium of visual presentation, and it allows teachers to display visual materials such as transparencies, diagrams and illustrations. Interactive lesson, teachers can write or draw on transparencies, making lesson more interactive. Flexibility, overhead projectors can be used in a variety of subjects for mathematics to language and arts. ये ओवरहेड प्रोजेक्टर का पिक्चर है। आजकल जो है इसका उपयोग उतना नहीं है, परंतु उन शिक्षण संस्थाओं में जहाँ पर कि डिजिटल लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं है, ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट टीचिंग एड के रूप में प्रयोग होता है। खास तौर से इसका महत्वपूर्ण उपयोग तब हो सकता है कि टीचर टॉपिक में ट्रांसपेरेंसी जो है, ये ब्लैक कलर का आपको टॉप दिख रहा है, इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी रख के मिरर के माध्यम से उसका रिफ्लेक्शन जो है आपके स्क्रीन पर पड़ता है, और एक्सप्लेन करने के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को समझाया भी जा सकता है, और इसमें जो है टीचर अपने अनुसार स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकता है, जिससे छात्रों को सीखने और समझने में और नोट्स लिखने में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ की। आज के ज़माने में लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ हर शिक्षण संस्था में होना बहुत अधिक आवश्यक है। सबसे पहली बात, लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ में जो टूल्स होते हैं उनके माध्यम से लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या है, लैंग्वेज लेबोरेटरीज़ में ऐसे जो है टूल्स रखे जाते हैं जिसकी वजह से छात्र को दे गेट अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस listening and speaking skills. And we all know that in learning language, listening is also equally important along with speaking.
So, this language laboratory provides you a platform. Second, self-paced learning. Students can work at their own pace, listening to recordings and responding to prompts. इसका मतलब क्या है कि लैंग्वेज लेबोरेटरीज में जो सॉफ्टवेयर उपलब्ध होता है वो सेल्फ पेस्ड लर्निंग को एनकरेज करता है. एज this chapters or the unit is designed for the special children as well as the special educator also. So, we must understand that how these language laboratories can be useful for special children. Since it is a self-paced learning, छात्र अपनी सीखने की गति के अनुसार लैंग्वेज लेबोरेटरी का प्रयोग कर सकता है, इस वजह से यह एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शनल एड है. देन इम्प्रूव्ड प्रोनाउंसिएशन. लैंग्वेज लेबोरेटरी में जो टूल्स उपलब्ध होते हैं उसमें विभिन्न तरह के एक्सेंट के माध्यम से कई तरह के नोट्स, इंटरव्यूज़ ये सब दिए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स कैन इम्प्रूव देयर pronunciation as well as they can work on their language skills. So, this is a language laboratory. It is something like a computer lab only, but in this laboratory you will see that more tools or the apps related to development of language will be available. A kind of software will be there in this language laboratory. Tutor is also there and along with that small group of learners are there. It means जो लैंग्वेज लेबोरेटरी में है स्टूडेंट्स की लिमिट कम होती है और टीचर जो है ये ईयरफोन्स लगाकर लैंग्वेज डेवलपमेंट में छात्रों को प्रॉपर गाइडेंस देती रहती है. हर बच्चा जो है लैंग्वेज लेबोरेटरी में टीचर द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए ईयरफोन लगाकर वह सुनता है और भाषा को समझने की कोशिश करता है. एंड वी नो दैट फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट स्पीकिंग स्किल लिसनिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो इन दैनिक भास्कर ऑफ यस्टरडे मैंने एक चीज़ देखी कि लाइव ट्रांसलेशन फीचर के साथ नई भाषाएं सिखाएगा गूगल. तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है. इसमें पेपर में की तारीख भी लिखी हुई है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा. तो इसमें यही बताया गया है कि एआई के माध्यम से गूगल ट्रांसलेटर बनेगा, जिसके माध्यम से आप कई भाषाएं सीख सकते हैं. सो हम ये जानते हैं कि आज के युग में जो है जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारे को बहुत अधिक मदद कर रहा है. और पिछले वीडियो में भी हमने इस बारे में बात की थी कि नई भाषाएं सीखना आज बहुत कठिन नहीं है और गूगल में भी ये फीचर बहुत जल्दी एआई के माध्यम से उपलब्ध होने वाला है. अब देखते हैं लैंग्वेज गेम्स. जैसे ही हम गेम्स का नाम लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है यह इंटरेस्टिंग होगा ऐसा हम प्रिज्यूम कर लेते हैं, पर लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए भी विभिन्न तरह के गेम्स होते हैं जिनके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में भी चर्चा की थी. और उसमें आप देखोगे जो लैंग्वेज गेम्स होते हैं, नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है, एंगेजिंग लर्निंग. इसका मतलब क्या है? छात्र पूरी तन्मयता से सीखने के लिए तत्पर रहता है. बिकॉज लैंग्वेज गेम्स मेक लर्निंग फन एंड एंगेजिंग. और फन लविंग लर्निंग जब होती है तो ऑटोमेटिकली इट मोटिवेट्स स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस लैंग्वेज स्किल्स है. इसमें बहुत सारे जो हैं जो तरह तरह के गेम्स जो हैं उपलब्ध हैं. बड़ी क्लासेस के लिए भी उपलब्ध हैं और छोटी क्लासेस के लिए भी उपलब्ध होते हैं. इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़. लैंग्वेज गेम्स कैन बी प्लेड इन ग्रुप्स और इंडिविजुअली, प्रमोटिंग इंटरैक्शन एंड कोलैबोरेशन. तो ये जो लैंग्वेज गेम्स हैं ये डिपेंड करता है, आप अकेले खेलना चाहते हैं तो आप अकेले खेलिए, या फिर यदि क्लासरूम में टीचर आपको ज़्यादा इंटरैक्टिव और कोलैबोरेटिव एक्टिविटी के रूप में यदि वो गेम्स को खिलाना चाहती है तो ऐसा भी हो सकता है. छात्रों को 2 या 3 ग्रुप में बांटकर उनके बीच में ये लैंग्वेज गेम्स करवाए जा सकते हैं. जिस तरह से गानों की अंताक्षरी होती है ठीक उसी तरह से वर्ड गेमिंग भी होती है, चाहे उसमें स्पेलिंग हो, सेंटेंस हो, ऐसी बहुत तरह की एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी. और आगे की स्लाइड्स में हम इस बारे में विस्तार से चर्चा भी करेंगे. सो वोकैबुलरी बिल्डिंग.
लैंग्वेज गेम्स कैन हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड वोकैबुलरी एंड इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। आपने सभी ने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा, तो आप जानते हैं कि जब आप किसी भी शब्द को यदि आपको कठिन लगता है तो आप उस शब्द पर जाइए और राइट क्लिक करेंगे तो सिनोनिम्स दिखते हैं। उस शब्द के आपको 8 से 10 शब्द मिलेंगे, तो आप आसानी से जो है किसी भी डिफ़िकल्ट शब्द को आसानी से समझ सकते हैं। तो ये जो वोकैबुलरी बिल्डिंग में नए नए शब्दों को सीखना और समझने में जो है ये गेम्स आपको बहुत अधिक मदद करते हैं। और लैंग्वेज के लिए आपकी वोकैबुलरी में नए नए शब्दों को जोड़ना भी बहुत अधिक आवश्यक है। ये आता है, एक आता है इधर पे साइमन सेज, तो पिक्चर बना दी गई है। तो फिजिकल एक्टिविटी गेम्स, तो इसमें आपको बताया साइमन एक तरह से टीचर के लिए कहा गया है। तो पक्षी क्या कर रहा है, ये ताली बजा रहे हैं, या फिर आप ये कार्टून क्या कह रहा है, इसके नीचे सिंबल लिखा हुआ है। और उस सिंबल में छात्रों को, खासतौर से छोटी क्लास के बच्चों को आप जो है ये पिक्चर दिखाकर उनसे ये कह सकते हैं कि आप बताएं कि इसमें एक्टिविटी क्या हो रही है। जैसे आप दोनों चित्र में देखेंगे, एक में कलर के बारे में बात करी है, दूसरे में उन्होंने कहा है कि बच्चा क्या कर रहा है, तीसरे में जो है उन्होंने छात्र की कोई और एक्टिविटी बताई है। तो ये पिक्चर के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से जब छात्रों को भाषा पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये फन के साथ साथ आप देखोगे ये छात्रों के लिए एंगेजिंग होती है। और ख़ास तौर से ये ब्रेन को ब्रेक करने में भी, ब्रेन को ब्रेक यानी जो आपके दिमाग में मोनोटोनी होती है, लगातार क्लास में बैठकर जब आप बोर हो जाते हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी से आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी। और जब आप खुश रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लर्निंग भी तेज़ी से होने लगती है। तो ये एक्टिविटी कक्षा में लैंग्वेज गेम्स के रूप में कक्षा में कराई जा सकती है। ऊपर हमने इसका सोर्स भी दिया हुआ है, तो ऐसे उसमें 20 उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसका कि आप कक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्वयं के लिए अपनी स्टडीज़ को मनोरंजक बनाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कक्षा में कर सकते हैं। जैसे इर्रेगुलर वॉवेल्स गेम है, सो तरह तरह के इसमें इर्रेगुलर लिखा है वॉवेल्स को, तो आपको इसमें से वॉवेल्स को आइडेंटिफाई करना है और ये बताना है कि वहाँ पर कहाँ हैं। तो एक कार्टून के रूप में बीच बीच में पिक्चर्स भी हैं। सो ये वर्ड गेम को भी आप यदि लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं ये आप जो है जंपिंग के रूप में रख दिया है। शब्द को एक साथ ना रख के इस चार्ट में आपको जगह जगह आपको वॉवेल्स मिलेंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज वर्ड्स एंड राइट द वॉवेल्स इन अ सेपरेट लिस्ट। जो आप जो है एक टीचर जो है एक्टिविटी के रूप में ये काम बच्चों को दे सकता है। यहाँ भी सोर्स लिखा हुआ है। आप इस तरह के हजारों उदाहरण हैं जिसको आप जाकर ये लैंग्वेज गेम को फन लविंग तरीके से लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब किंडरगार्टन का बिंगो यहाँ पर बताया है। इसमें 42 बोर्ड्स होते हैं और उसमें कई सारे लेटर्स भी हैं, नंबर्स भी हैं, कलर्स भी दिए गए हैं। तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 है, 9 है, तो ऊपर दिए गए चार्ट में से आपको उस नंबर को ढूंढना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से आपको देखना है कि यहाँ पर जो है डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं, तो ये वर्ड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कलर्स हैं नीचे, तो आपको स्पेलिंग यदि सीखनी है तो येलो है, तो ऊपर जो आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं उससे नीचे दिए कलर्स को आप बनाइए। तो इससे आप देखेंगे कि लर्निंग विथ फन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि आप जानते हैं 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1000 वर्ड जो कहा जाता है। एक पिक्चर के माध्यम से आप देखिए, इसी में आप 2 या 3 तरह की एक्टिविटी आसानी से कक्षा में करवा सकते हैं। यहाँ पर भी आपके लिए सुविधा के लिए सोर्स दिया गया है। अब देखते हैं हम रीडिंग कार्ड्स। रीडिंग कार्ड्स क्या होते हैं और इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। फिर वही बात आती है वोकैबुलरी बिल्डिंग। आपके शब्दकोश को बढ़ाने में रीडिंग कार्ड्स बहुत अधिक मदद करते हैं, एंड स्पेशली फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्टूडेंट्स टू न्यू वर्ड्स एंड फ्रेजेस। तो क्लासरूम में टीचर वोकैबुलरी बिल्डिंग में रीडिंग कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी वजह से छात्र नए शब्द को सीखेंगे और नए फ्रेजेस को सीखेंगे। देन कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस। टीचर जो है कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस के लिए लैंग्वेज में इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकती है। खासतौर से आप देखोगे रीडिंग है, फिर मीनिंग है, फिर आइडेंटिफाइंग द मेन आइडिया है। मान लीजिए आपने एक स्टोरी पढ़ा दी
और स्टोरी पढ़ाने के बाद, समझाने के बाद आप छात्रों से आप कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, जैसे इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस तरह की फन लर्निंग एक्टिविटी के माध्यम से आप छात्रों को आसानी से खेल खेल में जो डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको बहुत आसानी से समझा सकते हैं। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, इसका मतलब क्या है? रीडिंग कार्ड्स में ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रुप में करें। जैसा कि हम हर वीडियो में हर बार बात करते हैं, रीडिंग कार्ड्स के माध्यम से इट एनकरेजेस इंडिविजुअलाइज्ड स्टाइल ऑफ लर्निंग. It means when we talk of students with different capabilities in the classroom, so these reading cards can help all the learners beyond their learning capabilities. So this can be used to tailor instruction to individual students' needs and abilities. तो यदि हम स्पेशल चिल्ड्रन को भी इसके माध्यम से कुछ गेम के माध्यम से पढ़ाना चाहेंगे तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है रीडिंग कार्ड एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग टूल के रूप में टीचर इस्तेमाल कर सकता है। ये होते हैं रीडिंग कार्ड्स। इसका मतलब क्या है कि टीचर ने छोटे छोटे कार्ड्स बना दिए और लैंग्वेज में छोटी सी स्टोरी, एक पिक्चर बना दी। यहाँ पर लिखा आपने पेंगुइन। पेंगुइन क्या है? तो उन्होंने लिखा टुडेज टॉपिक इन क्लास इज अबाउट पेंगुइन, टीचर लीजा टॉट अस अबाउट पेंगुइन, द टॉपिक इज सो फन। ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी बातें हमने फन लविंग स्टाइल में एक स्टोरी के रूप में पेंगुइन के बारे में बच्चों को पूरी जानकारी दे दी। यहाँ पर हमने एंट लिखा है, दिस इज एन एंट, दिस इज अ रेड एंट। एंट की राइमिंग करके कलरफुल तरीके से बता दिया और साथ साथ ये भी बता दिया कि चींटियाँ जो है लाल भी होती हैं और काली भी होती हैं। नीचे बॉक्स है, ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में है। बॉक्स किस उपयोग में आता है? एक स्मॉल बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स होता है, फिर ज्वेलरी बॉक्स होता है। ऐसे आप बच्चों को और उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो हमने पेंसिल बॉक्स या फिर आपके स्मॉल बॉक्स के रूप में कहा है। तो सिमिलर यू कैन आस्क स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम्पल्स ऑफ वेरियस बॉक्सेस। तो वो लंच बॉक्स का भी देंगे, ज्वेलरी बॉक्स का भी देंगे। आजकल जो है घर घर में जो है ऑनलाइन शॉपिंग होती है तो उसके भी बॉक्सेस आते हैं, स्वीट के बॉक्सेस होते हैं, चॉकलेट के बॉक्सेस होते हैं। ऐसे छात्रों को आप और एनकरेज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से टीचर कई लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को ये रीडिंग कार्ड्स के माध्यम से इंटरेस्टिंग वे में छात्रों को पढ़ा सकता है और लैंग्वेज लर्निंग में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर इसके बेनिफिट्स आप समझ ही गए होंगे कि इनका इस्तेमाल कक्षा में क्यों किया जाता है। बच्चों का इंक्रीज एंगेजमेंट हो जाता है। जब उनको फन लविंग तरीके से कक्षा में बढ़ाया जाता है तो छात्र उसमें एनग्रॉस्ड हो जाते हैं, मोटिवेटेड हो जाते हैं। इसलिए जो है जब उनकी जो व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड और व्हेन दे आर टोटली एंगेज्ड इन क्लासरूम एक्टिविटी, डेफिनेटली आप देखोगे उनका एंगेजमेंट और रिटेंशन की पावर बढ़ जाती है। इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स, अभी जो आपने 2-3 उदाहरण देखे उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे, चाहे वो लैंग्वेज लेबोरेटरीज हो, लैंग्वेज गेम्स हो या रीडिंग कार्ड्स हो, दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, दीज इंस्ट्रक्शनल एड्स कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड सेटिंग। इसका मतलब है कि छोटे छोटे से कार्ड्स होते हैं, एक बॉक्स में टीचर एक बार बना ले तो इसका उपयोग कई वर्षों तक वह लगातार कर सकती है। और टीचर चाहे तो एक्टिविटी के रूप में सेम काम जो है बच्चों को भी दे सकती हैं और इसके लिए वो चाहे तो पुराने जो मटेरियल होते हैं उसको रीयूज़ भी किया जा सकता है। पुराने आपके ग्रीटिंग कार्ड्स होते हैं, पुराने आपके कैलेंडर्स होते हैं, उन सब के माध्यम से जो चाहें तो वो रीडिंग कार्ड्स बनवा सकती हैं या फिर आप स्टूडेंट्स के लिए कोई गेम बना सकती हैं। इस तरह से आप देखोगे कि ये चीज़ें बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ये इंस्ट्रक्शनल एड्स के इफ़ेक्टिव यूज़ के लिए सबसे पहली बात, जैसा हम हर बार बात करते ही रहे हैं, कि किस तरह से इसको लेसन प्लान में इंटीग्रेट करना है सो दैट इट विल री इन्फोर्स द की कॉन्सेप्ट दैट हैज़ टू बी लर्नड बाय द टीचर। देन contextualization. So basically whenever teacher is using this instructional aid, she should provide context for these instructional aid, when, how and why she is using these instructional aid. It should be very clear to the teacher as well as the students. Then
third point is follow up activities. So whenever teacher uses this instructional aids, there should be some follow up activities, so that teacher will be able to assess whether students have learned the concept clearly or not, and this will also reinforce learning and promote further practices. So by leveraging these instructional aids effectively, educators can create engaging, interactive learning experiences that support students' learning and achievement. So as we have talked about the types of instructional aids, or they can be a game changer for special children learning English. These are the ways which can be utilized for the special children. So instructional aids में you will see that there are visual aids. So in the category of visual aids, you can keep pictures, diagrams, flashcards, videos which can help special children understand complex concepts and vocabulary. So हम भाषा के संबंध में यदि हम बात करते हैं, so ऐसे बहुत सारे visual aids हैं जो कि हम special children के लिए आवश्यकता के अनुसार इनका जो है हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन स्पेशल चिल्ड्रन को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत अधिक आसानी होगी. फिर ऑडियो एड्स की बात है. सो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है, पॉडकास्ट है या ऑडियो बुक्स हैं, दैट कैन असिस्ट विथ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल वाई ऑल्सो कैटरिंग टू ऑडिटरी लर्नर्स. इसका मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते हैं, उनकी ऑडिटरी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, उनकी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाने के लिए ये ऑडियो एड जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसके साथ साथ आता है आपका कॉन्क्रीट एड्स, मैनिपुलेटिव लाइक बेटर टाइल्स, वर्ड ब्लॉक्स एंड टेक्सचर बेस्ड मटेरियल्स कैन एंगेज काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ द लर्नर्स. काइनेस्थेटिक का मतलब ही होता है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एंड लर्नर्स कैन हेल्प विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट. यहाँ पर आप देखोगे वर्ड बॉक्स या टेक्सचर बेस्ड मटेरियल की बात की है, तो उसमें क्या है, एनग्रॉस्ड शब्द होते हैं. बच्चा उसको छू कर भी समझ सकता है कि इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट किया है. सो छोटे छोटे से टाइल्स के रूप में ब्लॉक्स ले लीजिए, उनमें आप जो है, आप चाहो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप वैक्स का भी इस्तेमाल करके वेरियस अल्फ़ाबेट्स बना सकते हैं, जिससे कि छात्र जब उसको छुएगा तो इस बात का एहसास होगा, जो ख़ास तौर से जो विजुअल स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनके लिए. तो इस तरह के टाइल्स जो इसमें कि वर्ड ब्लॉक्स होते हैं, टेक्सचर बेस्ड मटेरियल होता है, उसकी वजह से जब उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है तो वो लर्नर्स के लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसके अलावा ये भी आता है कि इंटरैक्टिव एड्स होते हैं. सो एजुकेशनल ऐप्स में आप देखोगे गेम्स हैं, क्विजेज हैं, दैट कैन मेक लर्निंग फन एंड इंटरैक्टिव, प्रमोटिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट. इसका मतलब क्या है कि जब छात्र जो है वो अकेला बैठ के नहीं सीखेगा, जब वो इंटरैक्टिव होता है कि मतलब आप बोलेंगे और वहाँ से भी आपको रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे छात्रों को ये लगता है कि हम सब मिलजुल कर सीख रहे हैं. तो फन के साथ साथ जब इंटरैक्टिव सेशन होते हैं तो इंस्ट्रक्शनल एड स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशली इन लैंग्वेज लर्निंग, दे बिकम मोर हेल्पफुल. देन रियल लाइफ एड्स, इसका मतलब क्या है, रियल लाइफ सिनेरियोज, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उसको आप छू कर बता सकते हैं. एक सिंपल सा उदाहरण हम ले सकते हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स, सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम अल्फ़ाबेट, आप बच्चों को, चाहे वो किसी भी तरह के बच्चे हों, स्पेशल चिल्ड्रन हो या नॉर्मल चिल्ड्रन हो, उनके हाथ में आप वेरियस कलर के फ्रूट्स दे दीजिए और उनको उसका नाम बोलने के लिए कहिए, कलर बोलने के लिए कहिए, उसके शेप के बारे में कहिए. तो बच्चों को जो रियल लाइफ सिनेरियो में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ रहता है, तो ये जो लर्निंग होती है वो एवर लास्टिंग होती है. हमेशा छात्रों के दिमाग में जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के माध्यम से या रियल लाइफ एक्सपीरियंस के माध्यम से बच्चों को बहुत अच्छे से समझाया जा सकता है. अब आप देखेंगे ये जो इंस्ट्रक्शनल एड है वो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है. तो पहले तो आप देखेंगे इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी. जो इंस्ट्रक्शनल एड हैं वो दैट प्रोवाइड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन और एजुकेटर्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी सच एज
विजुअल और हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स। इसका मतलब क्या है, ये जो इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होते हैं। इतने सारे इंस्ट्रक्शनल एड्स अवेलेबल हैं कि छात्र जो हैं, स्पेशली स्पेशल चिल्ड्रन जो हैं, चाहे वो विजुअली हैं, चाहे वो हियरिंग है या किसी भी तरह का उनको जो इम्पेयरमेंट है, ऐसे में जो है छात्र विभिन्न तरीके उपलब्ध इंस्ट्रक्शन एड का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जो है स्पेशल एजुकेटर क्लासरूम टीचिंग को मोर एक्सेसिबल और फन लविंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। अगली बात आती है पर्सनलाइज्ड लर्निंग। पिछले कई वीडियो में हमने इस बारे में भी चर्चा की है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग यानी ग्रुप में भी उसको सीखा जा सकता है और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो ये टेलर्ड इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं वो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल के लिए भी हो सकता है, उनकी नीड्स और एबिलिटीज़ को भी पूरा कर सकता है। इसके साथ साथ आप देखोगे ग्रुप एक्टिविटी में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर इस बात पर हम स्ट्रेस करेंगे, चूँकि बच्चे फन लविंग तरीके से एक्टिविटी बेस्ड तरीके से पढ़ते हैं तो उनके एंगेजमेंट जो है स्पेशली इसमें काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू एंगेज इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी फॉर लॉन्ग टाइम। सो दीज इंस्ट्रक्शनल एड्स कैन मोटिवेट स्पेशल चिल्ड्रन टू लर्न एंड पार्टिसिपेट इन द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देन एनहांस रिटेंशन, हमने बात ही की है, चूँकि मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शनल एड जो होते हैं वो छात्रों को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाते हैं उनकी मेमोरी में लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसलिए उसका एनहांस्ड रिटेंशन पावर इसकी होती है। चाहे वो लैंग्वेज के लिए रिकॉल करने का हो, चाहे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत आसानी से इन इंस्ट्रक्शनल एड्स के माध्यम से समझे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। जैसे उनके लिए स्पेशल चिल्ड्रन के लिए आती हैं आजकल ऑडियो बुक्स और ई बुक्स अवेलेबल हैं विच प्रोवाइड एक्सेसिबल रीडिंग मटेरियल फॉर चिल्ड्रन विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स और रीडिंग डिफिकल्टी। सो ऑडियो बुक्स या ई बुक्स में आवाज़ आती है और छात्रों को वो सुना कर बातें समझा देती है। फिर विजुअल शेड्यूल्स होता है, इट हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म और ADHD एंड इट विल हेल्प देम टू स्टे ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये स्पेशल चिल्ड्रन का ध्यान एक स्थान पर केंद्रित करना बहुत मुश्किल होता है, पर उनकी विजुअल शेड्यूलिंग करके आप देखोगे ऑडियो और ई बुक्स जो हैं उनकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाती जाएंगी और रीडिंग डिफ़िकल्टी को मिनिमाइज करती चली जाएंगी। देन देर आर मेनी लैंग्वेज लर्निंग एप्स ऑल्सो एंड विच ऑफर इंटरैक्टिव एंड एंगेजिंग लैंग्वेज लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। सो आप देखोगे कि ऐसे बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं कि वो स्पेशल चिल्ड्रन जो है मेन स्ट्रीम से उनको अलग रहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी सुविधाएं इन बच्चों के लिए भी उपलब्ध है। देन साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन, यहाँ तक कि टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु आर डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग, उनके लिए भी साइन लैंग्वेज में तरह तरह के ऐप्स जो है यहाँ पर उपलब्ध हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो जिसमें कोशिश यही की जा रही है आजकल के एजुकेशन पैटर्न में, और जिस तरह से हमारे देश का संविधान भी कहता है समाज का कोई भी वर्ग वंचित ना रहे, तो आप ये देखोगे इंस्ट्रक्शनल एड्स के माध्यम से समाज के हर वर्ग को शिक्षा के समान अवसर मिले, उसमें इंस्ट्रक्शनल एड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसके साथ साथ आप देखोगे ब्रेल मटेरियल भी प्रोवाइड होता है और उसमें आप देखोगे कि जो बच्चे ब्लाइंड हैं या फिर उनका विजन अलग है, आजकल तो कंप्यूटर में कीबोर्ड्स भी जो है अवेलेबल हैं, उनके लिए कोई आवश्यकता नहीं है कि ब्रेल में ही उनको किताबें उपलब्ध करी जाएं। आजकल कंप्यूटर में भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें हर बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार इन ऐप्स और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है। अब हम कंक्लूजन के रूप में देखेंगे कि हमने पिछले स्लाइड्स में या इस विषय को जब से हमने पहले टॉपिक से इंस्ट्रक्शनल एड को शुरू किया है तो हमने इंस्ट्रक्शनल एड को कई भागों में विभाजित किया।
तो जब आप हमारा पहला वीडियो देखेंगे और आज का वीडियो देखेंगे तो आप दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज और कनेक्शन पाएंगे, क्योंकि टॉपिक यही है। चूंकि काफी बड़ा टॉपिक है तो आपकी सुविधा के लिए उसको तोड़कर, जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सके, छोटे छोटे टॉपिक्स में बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। तो जैसे हम ओवरहेड प्रोजेक्टर की बात करते हैं, या लैंग्वेज लेबोरेटरी है, लैंग्वेज गेम्स हैं, या रीडिंग कार्ड जो हैं, दीज और इंस्ट्रक्शनल एड्स कैन बी सिग्निफिकेंटली एनहांस फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस। और आप देखोगे कि लैंग्वेज लेबोरेटरी जो है, गेम्स हैं, रीडिंग कार्ड्स हैं, दे कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर लैंग्वेज स्किल्स। और बेसिकली चूंकि हम पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हमको उन बातों पर भी, उन इंस्ट्रक्शनल एड्स पर ज़्यादा स्ट्रेस करना पड़ेगा जो कि लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो लैंग्वेज लेबोरेटरी, लैंग्वेज गेम्स और रीडिंग कार्ड जो हैं, लैंग्वेज स्किल को एनहांस करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ साथ आप इंस्ट्रक्शनल एड्स का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि इट कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट एंड सेटिंग्स। सो खाली हम लैंग्वेज की ही बात नहीं, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, आर्ट हो, फाइन आर्ट्स हो, म्यूजिक हो, हर जगह आप इन इंस्ट्रक्शनल एड का उपयोग कर सकते हैं। जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर है, लैंग्वेज गेम्स है, रीडिंग कार्ड्स हैं, इसमें आप देखोगे कि चूंकि हम पढ़ाने का तरीका इंटरैक्टिव होता है, फन लविंग होता है, तो उससे छात्र बहुत मोटिवेटेड रहते हैं और उनका कंसंट्रेशन विषय की तरफ बना रहता है। इसके बाद आप देखोगे, टू मैक्सिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ दीज इंस्ट्रक्शनल एड्स, educators should choose materials that align with learning objectives and are suitable for the audience। इसका मतलब क्या है, जब टीचर इन इंस्ट्रक्शनल एड को चुनता है तो उसको ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जैसा कि शुरू के स्लाइड्स में हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव की बात की थी, तो टीचर को ये देखना पड़ेगा क्या वह उन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में सक्षम है कि नहीं, या फिर जो वो इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल कर रहा है वो जिन छात्रों को पढ़ा रही है उनके लिए सूटेबल है कि नहीं। यह वाइजली जो है इनको डिवीजन और इनका सिलेक्शन करना टीचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। द एड शुड बी इंटीग्रेटेड इनटू लेसन प्लान यूजिंग देम टू रीइंफोर्स की कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या है, हम बार बार इस बात पर स्ट्रेस कर रहे हैं कि टीचर जब लेसन प्लान बनाता है तो तभी टीचर को किस समय कौन से इंस्ट्रक्शनल एड को यूज़ करने वाली है उसको पहले ही इंटीग्रेट कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य लर्निंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को रीइंफोर्स करना है। सो टीचर शुड एंश्योर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द रिलेवेंस एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मटेरियल्स बीइंग यूज। छात्रों को समझ में आना चाहिए कि टीचर ने इस इंस्ट्रक्शनल एड को कक्षा में, क्लासरूम टीचिंग को सिर्फ एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने में मदद करने के लिए उपयोग किया है, या फिर छात्रों को उसके माध्यम से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझने में कितनी आसानी हुई है, ये टीचर को इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कक्षा में बीच बीच में छात्रों का फीडबैक भी टीचर लेता रहे, जिससे कि उनकी सुविधा के अनुसार यदि आवश्यकता हो तो टीचर इस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में परिवर्तन भी कर सके। सो इन क्लासरूम टीचिंग, बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शनल एड्स इफेक्टिवली, एजुकेटर्स कैन क्रिएट एंगेजिंग interactive learning experience that support student learning and achievement। इसका मतलब क्या है कि क्लासरूम में छात्रों को एंगेज करना, छात्र और टीचर के बीच में डायलॉग बने रहना और छात्रों की लर्निंग को सपोर्ट करने में जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल ज़्यादा से ज़्यादा भूमिका निभाएगा वही क्लासरूम टीचिंग में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई एक ही टीचिंग मटेरियल नहीं है। पिछले कुछ वीडियो में आपने जिन भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, इंस्ट्रक्शनल एड्स के बारे में जानकारी ली है, टीचर अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से 1, 2, 3, 4 किसी का भी इस्तेमाल आपकी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार वो प्लान कर सकती है। अंत में, जैसा कि हर स्लाइड्स के अंत में हम रिव्यू क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ये हम बात कर सकते हैं।
ये परीक्षा में आएंगे ये कोई गारंटी नहीं है, पर इन पिछले 15-20 स्लाइड्स में जिन बातों को हमने डिस्कस किया है उस पर शॉर्ट आंसर किस तरह के बन सकते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन ओवरहेड प्रोजेक्टर कैन बी यूज्ड टू एनहांस टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम? और in this answer you should discuss the use of overhead projectors to display visual materials, illustrate complex concepts and engage students. तो आपको हिंट भी दे दिया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर आपको किस तरह से लिखना है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज लेबोरेटरीज इन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन? और इसमें भी आपको एक हिंट दे दिया गया है, आंसर शुड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज लेबोरेटरीज टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, improve pronunciation and work at their own pace. इसके साथ साथ आप इसमें स्पेशल चिल्ड्रन के लिए भी उसमें एक पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज लेबोरेटरी स्पेशल चिल्ड्रन के लिए यूजफुल होगी। अब हम कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल एड्स सच एज ओवरहेड प्रोजेक्टर, लैंग्वेज लेबोरेटरीज, लैंग्वेज गेम्स एंड रीडिंग कार्ड्स in enhancing the learning experience. Provide examples of how these tools can be used to support learning in different subjects and with different learning capable children also. Then question number 2 is, how can these instructional aids can be used to support children with visual, auditory or cognitive impairment? Third question is, what modifications or adaptations can be made to these instructional aids to make them more accessible for special children? And next question is, how can these instructional aids be used to promote inclusion and engagement for special children in the classroom? And in the last slides, there are some references which you can access यदि आप अपनी नॉलेज को और एनहेंस करना चाहते हैं या फिर इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आपके पास ये सोर्सेज या रेफरेंसेस दिए गए हैं जिसको कि आप क्लिक करके अपने नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।